Welcome to the 14th lecture of conic section, and today we will do normal to the parabola. In the previous class I have done chord to the parabola, and two lecture before, in lecture number 11 12 I have done what? Tangent to the parabola. Now I proceed with normal to the parabola. There are 7 or 8 points regarding this, but first 3 are very important. 7 से 8 पॉइंट आपको हम लिखवाएंगे आज, उसमें पहला 3 ही बहुत इंपॉर्टेंट है. लिस्ट और इंफॉर्मेशंस, प्रॉपर्टीज, यूजफुल इन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, नथिंग एल्स. तो आप देखिए रिजल्ट 1 मैंने लिख दिया क्योंकि बहुत आसान था. आपको पॉज करके लिख लीजिए और आपको लिखते लिखते समझ में आ जाएगा. पॉज कीजिए, लिखिए. होपफुली आपने लिख लिया है. Equation of normal at a point x1 y1 to the parabola y square is equal to 4x is given by this. How? See the figure. This is point x1 y1. This is parabola what? This is parabola y square is equal to 4x at the point x1 y1. This is equation of tangent. I have done, पहले बताया है. Slope of tangent 2a by y1. Normal is what? Normal is perpendicular to tangent. So its slope is what? Slope is minus y1 by 2a. So what is the formula? Y minus y1 is equal to m into normal x minus x1. Replace this by what? Replace this by minus y1 by 2a. So is the first result. Let me move to the second one. Let me move to equation of normal at a point 80 square 280 to the parabola y square is equal to 4x is given by y is equal to minus 3x plus 280 plus 80 cube. Result 2 and 3 are of utmost importance. दूसरा और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट होगा. रिजल्ट नंबर 2, जब हमने इस x1 y1 को रिप्लेस किया तो कैसे बनेगा? From result 1, proof, parametric point. From result 1, what do we get from result 1? Y minus y1, instead of y1, what do we put? 280 is equal to minus y1 by 2a. What is y1? 280, so minus 280 by 2a. Or this is what? X minus 80 square. 2a से 2a cancel हो गया. Now redistribute. Y is equal to, you can say this is minus 3x. What is this? Put it to right side. 280. And what is this? Minus minus plus 80 cube. We must also know slope of normal is minus t. Minus t. I have done slope of tangent at parametric point is 1 by t and slope of normal is minus t. So what is the result? Now, actually result number 1 is on x1 y1, result number 2 is on 80 square 280. Now come to result number 3, the most important result. I hope you have written. Come to result number 3. Result number 3. Equation of normal. Equation of any normal. Equation of any normal to the parabola. Parabola y square is equal to 4ax is taken as y is equal to mx minus 2am minus am cube. This is normal in terms of slope m. That point is important. This is normal in terms of slope m. In terms of slope, this is important. Any normal.
दिस कम्स फ्रॉम रिजल्ट टू। देखिए पैराबोला पे नॉर्मल का तीन तरह का रिजल्ट हो गया। पहला पॉइंट x1 y1 पे, दूसरा पैरामेट्रिक पॉइंट AT² 2AT पे, और तीसरा किस पे, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको आप डबल स्टार कर लीजिए, एक ब्लैक भी और एक रेड भी। ये रिजल्ट ही पूरा खेल है नॉर्मल में। इन टर्म्स ऑफ स्लोप है, फर्स्ट ऑफ ऑल सी हाउ दिस रिजल्ट कम, उसके पहले आप लिख लीजिए, वो हम लिखते हैं बाद में समझाएंगे। फुट ऑफ नॉर्मल इज, एक्चुअली कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ नॉर्मल इज am² - 2am। अगर आप पूरा लिख रहे होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ नॉर्मल, तो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। फुट ऑफ नॉर्मल इज am² - 2am। पहले इस रिजल्ट को समझिए, एक्सप्लेनेशन इसका समझिए। एक्सप्लेनेशन कम्स फ्रॉम रिजल्ट 2। फ्रॉम रिजल्ट 2 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, आपके पास लिखा होगा, लिखते चल रहे होंगे, दिस इज y is equal to -2x plus 2at plus at³। replace ty minus tym, that is ty minus m। देखिए हमने रिजल्ट 2 को नए तरीके से लिखा है। रिजल्ट 2 में ये स्लोप था और इसको मैंने m मान लिया। हमने क्या कहा, रिजल्ट 2 इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक पॉइंट, 3 इन टर्म्स ऑफ स्लोप। तो रिजल्ट 2 में ये स्लोप था, इसको मैंने क्या मान लिया, m। तो ये इक्वेशन आपका कितना हो जाएगा, y is equal to mx minus, this is replaced by minus m, so 2am minus am³। so is the normal, let me erase the result part, let me erase up to this part, equation of normal in terms of slope m। now what happens, actually this is normal in terms of what, this is normal जब भी बनाना होगा किसी फिगर में, तो आप पहले टेंजेंट हल्का से बना लीजिएगा और उसके बाद नॉर्मल बनेगा 90 डिग्री। ये क्लियर करता है, दिस इज टेंजेंट, दिस इज नॉर्मल। इसका इक्वेशन क्या है, y is equal to mx minus 2am minus m³। this is called foot of normal। this normal will cut parabola somewhere। ये नॉर्मल पैराबोला को कहीं ना कहीं कट करेगा। जिस पॉइंट पे कट करेगा वो क्या होगा, वो आपका होगा फुट। देखिए पहले रिजल्ट में पॉइंट मेंशन था, दूसरे रिजल्ट में पॉइंट मेंशन था, पैरामेट्रिक पॉइंट, और तीसरे में स्लोप मेंशन है। तो स्लोप से जब नॉर्मल हम लिखेंगे तो कहीं तो कट करेगा, ये क्या होगा, ये आपका होगा फुट ऑफ नॉर्मल। अब सवाल है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये कोऑर्डिनेट आपका क्या था, f का कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये आपका at² 2at होता है पैरामेट्रिक के केस में, और t को हम किससे रिप्लेस कर दिए, -m से रिप्लेस कर दिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस नहीं, स्क्वायरिंग हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा। तो हम यही लिख सकते हैं, रिप्लेसिंग ty minus m in at² 2at foot of normal, या पूरा लिखिए तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ नॉर्मल आर। जब कोऑर्डिनेट्स यूज कीजिएगा तो दोनों सिंगल आइडेंटिटी यूज होती है, और पॉइंट यूज करते हैं तो वन आइडेंटिटी यूज होती है। नॉर्मल आर, व्हाट इज दिस, यू कैन से am² minus 2am। There is one more point in this result. If you want to write, make pause and write. One more point is this result. Now let me erase this one. You can say this as result 3a. 3a means 3 additional, no new result. Line y is equal to mx plus c will be a normal
to the parabola y square is equal to 4x if, I hope you have written, if c is equal to minus 2am minus am cube. This is nothing new. This is called condition for normal. Condition for a line to be normal. For a line y is equal to mx plus c to be normal to y square is equal to 4x. यूज करेंगे इसको, ठीक है, इसको यूज करेंगे. This is actually take MHC. You must recall, let me erase this one. You can recall y is equal to mx plus c. टेंजेंट का कंडीशन क्या था? c is equal to a for tangent c is equal to a by m, y is equal to mx plus c for normal. कंफ्यूज नहीं करेंगे, हालांकि क्वेश्चन में दोनों m दो अलग अलग ढंग से आएगा. 2am minus am cube. इसके लिए आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था? इसके लिए आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, चलिए बगल में लिख दो. ये था इसके लिए आपका पॉइंट, यही तो लिखता हूं, आप लिख लेंगे अपने से a by m square to a by m. और इसके लिए आप टेंजेंट के लिए और नॉर्मल के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था? ये आपका आया am square minus 2am. दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. दोनों रिजल्ट को ध्यान रखिए. फॉर टेंजेंट इसलिए क्रिएट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसलिए था पॉइंट. इसका एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस बार नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? फुट ऑफ नॉर्मल. कांटेक्ट भी कह सकते हैं, पर नॉर्मली मैथमेटिक्स में कांटेक्ट टेंजेंट लाइन की यूज हो सकता है. यहां पे आप लिख देंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये फुट ऑफ नॉर्मल. नाउ let me do some questions on this, and after that 4 or 5 more points that you have to keep in mind. Or most of the questions are coming from here and will be coming from here. Let me raise and write down the first question. The question is this is question number 59, continuing from last class. I am continuing from previous class. I have done 14 in previous class. Find the equation of normal at the point you can take, suppose point is 9, 6 to the parabola y square is equal to 4x. Find the equation of normal at the point 6. Let me see. Have I written the correct data? I hope so. I hope so. Okay, correct. I have written correctly. Now, you try to do this one. Based on result number 1. And along with that, I will write the second question also. Find the equation of normal through the point or from the point. ये भी लिखा हो सकता है 9, 6 to the parabola y square is equal to 4x. This is the case. Find the equation of normal at the point 9, 6 to the parabola y square is equal to 4x. Parabola. Find the normal through the point to the parabola y square 4x.
First of all, we will see what is the difference between two question. ये important है, बहुत important है. क्वेश्चन आपको दोनों देखने में एक ही लग रहा है, पर सॉल्यूशन को आप ध्यान से देखेंगे. सॉल्यूशन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे. 9 6 lies on y square is equal to 4x. ये वाला y square is equal to 4x पे लाई कर रहा है क्योंकि इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. Therefore, using result 1, equation of normal is what is the equation of normal? Y minus y1 is equal to minus y1 by 2x minus x1. You can see there a is equal to 1 because of 4 a is equal to 4. This is x1 y1. This is what? Y minus 6 is equal to minus 6 y2. X minus 9 means what? Y minus 6, this is minus 3. Minus 3x and minus plus 27. So what do we get finally? We finally get 3x plus y minus 33 is equal to 0. This is the equation of normal at the point 96 on the parabola, because point 96 lies here. Because point 96 lies here. This is point 96 and this is the normal. Point 96 and this is the normal. Okay? I hope you have done this question. Now come to the question number 16. This is most important concept. And next two properties based on this. Next two properties are based on this. So see it carefully. What I have written, find the equation of normal to the point or from the point, कुछ भी लिखा हो सकता है, 96 to the parabola this. Actually, we will see in the solution of next question, in this question, that there are two more normals. One at this point and one at this point. There are two more normals. That will pass through this and that will pass through this. At one point on the parabola, there is only one normal. It's correct. But there are other points. When you write the equation of this normal and you write the equation of this normal, we will find this point also. And what we find, this normal is satisfied by 96 and this normal is satisfied by 96. So we can say there are three normals, maximum three, that all the property. There are three normals in this question which are passing through point 96. बात समझ में आई? देखिए 96 पर तो एक ही नॉर्मल है. अभी हम इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बनाएंगे और बनाकर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, इस पे जो नॉर्मल लिखेंगे वो 96 को सेटिस्फाई कर रहा है और यहाँ पे एक और पॉइंट आ रहा है, इस पे भी नॉर्मल लिखे तो 96 को सेटिस्फाई कर रहा है. तो हम कह सकते हैं कि 96 से हमारे कितना नॉर्मल जा रहा है? 3 नॉर्मल जा रहा है. तो आपको बहुत अलर्ट रहना है. If the question contains at the point, if the question contains at the point, then point must lie on the parabola. And we have to find only one tangent. If question said through the point, in this case, question may lie on the parabola, may not lie on the parabola. एकदम ध्यान रखिएगा. Through the point में ऐसा हो सकता है, कुछ क्वेश्चन आज मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूंगा, फिगर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि parabola पे 3 अलग-अलग नॉर्मल है. ये यहाँ से पास किया, ये यहाँ से पास किया, ये यहाँ से पास किया. ये पॉइंट कहीं से है ही नहीं है parabola पे. तो थ्रू द पॉइंट में पॉइंट पैराबोला के भीतर बाहर कहीं भी हो सकता है. तो ये वाला थ्रू द पॉइंट का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? लेट्स सी. थ्रू द पॉइंट का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे. सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बी रिजल्ट 3. Y is equal to mx minus 2am minus am cube. Here this is y is equal to mx minus 2am minus m cube because a is equal to 1. I have written in result 3 equation of any normal to the parabola. कोई भी normal in terms of slope लिखेंगे. Through the point में क्या लिखेंगे? In terms of slope. It passes through 96.
It passes through what? It passes through 9, 6. So what we get? Therefore 6 is equal to, we get 9m minus 2m minus m cube. This will be a quadratic equation, m cube minus 7m plus 6, 0. And this quadratic equation will suggest that there will be 3 normal. This quadratic equation will suggest that there will be 3 normal. We have to solve by trial और easily solve हो जाता है. m cube minus what? This is, you can say m minus 6m plus 6. easily solve हो जाएगा every time. What is this? This is m square minus 1 and minus 6m minus 1. What we have to do? This is m into m minus 1 into m plus 1 minus 6m minus 1, 0. And what is do m minus 1? m into m plus 1 minus 6, 0. Let me raise the question. Now no read the question. And when you factorize m square plus m minus 6, this is इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ. ये आपका हो गया m plus 3. ये आप कर सकते हैं. 3 into 2 6 होता minus 6 होता है, ये हो जाएगा. m is equal to what? m is equal to what? m is equal to 1 to 1 minus 3. So there are 3 normals. इसका फिगर भी बनाएंगे. But before coming to final answer, let me deal 1 or 2 more points. The next point will be, जो मैं लिखवाऊंगा, a parabola can have at most 3 normals. एक पैराबोला में मैक्सिमम 3 नॉर्मल हो सकता है. Why? यहीं पे समझ लीजिए, मैं आगे फिर लिखवा दूंगा. Because it is a cubic equation in M. कोई जरूरी नहीं है. हो सकता है कि इसके एक ही रियल रूट आए तो एक ही नॉर्मल होगा. हो सकता है इसके 2 रूट्स आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए, कुछ ये ऐसा आ जाए. एक रूट 1 एक माइनस 2. ठीक है, तो इस केस में 2 ही नॉर्मल मिलेंगे. लेकिन मैक्सिमम कितने मिलेंगे? 3 नॉर्मल मिलेंगे. तो अभी मैं इसको जो कुछ प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा इस क्वेश्चन के बाद, उसमें फर्स्ट होगा एक पैराबोला में टोटल कितने नॉर्मल मिलेंगे? टोटल 3 नॉर्मल मिलेंगे. कितने नॉर्मल मिलेंगे? 3 नॉर्मल मिलेंगे. ठीक है, मैक्सिमम एट मोस्ट कोई जरूरी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ दिस क्यूबिक इक्वेशन इज. एंड आफ्टर दैट जो मैं लिखवाऊंगा, अगर 3 नॉर्मल मिलेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे, तो इनका सम 0 होगा. एकदम फुल प्रूफ y सम 0 होगा. इसलिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ये एक्चुअली कैसा आएगा? ऑलवेज ये आएगा m क्यूब प्लस 0m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 6. इसमें हमेशा मिसिंग होगा. क्या मिसिंग होगा? इसमें हमेशा ये m स्क्वायर मिसिंग होगा. चूंकि m स्क्वायर मिसिंग होगा तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस bym से 0. तो ये 2 अगले प्रॉपर्टी होंगे जो हम आपको करवाएंगे. बट अभी तक हमने क्या किया है, क्योंकि थ्रू द पॉइंट था तो हमने पैराबोला के इक्वेशन लिखा, इस पॉइंट से पास करवा दिया. थ्रू द पॉइंट वाले में पॉइंट पैराबोला तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता, और उसको हमने सॉल्व किया, 3 वैल्यू आ गए. एंड नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन, व्हिच वन? नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन, अब इसकी जरूरत नहीं है, आपने इसको अगर लिख लिया तो इसकी जरूरत नहीं है. यूजिंग दिस इक्वेशन we will write the 3 normals. So is the 3 equations, and we will also find foot of perpendicular at m is equal to 1. Equation 1x, y is equal to x minus 2 minus 1 minus 3. Foot of perpendicular, foot of normal, perpendicular no, foot of normal. This is actually am square minus 2am. A is 1 and m is 1. A is 1 and m is 1. So this is what? This is m square minus 2m. Means what? This is your I can say 1 and minus 2. Let me write direct. 1 minus 2. And m is equal to this time 2.
Equation 1 is y is equal to, when we write 2, this is 2x. This is minus 4 minus 8 minus 12. And what is foot of normal? What is foot of normal? When a is equal to 1, this is m square minus 2m. Here put a is equal to an m square minus 2m. And 2, this is 4 minus 4. And what I hope you have done. And what m is equal to 3. I think minus 3. At m is equal to minus 3. At m is equal to minus 3, this is what? Normal is, let me write from here. At m is equal to minus 3, equation of normal is, when you go to minus 3, this is y is equal to minus 3x plus 6 and plus 27 plus 33. And foot of normal is, foot of normal. A is equal to 1, so foot here. This is 9, 6. And this is minus 3 square 9, minus 2 into minus 3, 6. This is question number what? This is question number, what is it, 15. So is the case. Now go through figure. What happens in this question? Through the point means what? Actually, this is a parabola. Come to foot of perpendicular. 1 minus 2. Somewhere here. 4 minus 4. Somewhere here. And 9, 6. Somewhere here. 9, 6. Somewhere here. There is one normal. Normal के लिए tangent आप जरूर बनाइएगा. This is one of the normal. This is one of the normal and it will pass through 9, 6. You can see this equation is satisfied by 9, 6. There is one more normal. This is also satisfied by 9, 6. This is second normal. This is third normal. You can also see that this equation is also satisfied by what? Also satisfied by 9 and 9 to the 18 minus 12, 6. So is the case. But through the point is very, very important. Before moving to next property, let me deal some more question on. I hope you have copied. Must see the figure at last. शुरू में हम figure नहीं बना सकते थे, but when we know foot of normal, we can draw the. Now, see the next question with the x-axis. Now, see the questions. Actually, I just want to make a distinguish between these two concepts. Here I have written in two different form. यहाँ पे मैंने जो अलग-अलग फॉर्म में लिखा है, बट कभी-कभी एक ही साथ आ जाता है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम होता है. पहले क्वेश्चंस को हम पढ़ लें. Find the equation of tangent to the parabola y square is equal to 8x, which makes an angle of 45 degree with positive direction of x-axis. Means slope is plus 1. And second, find the equation of normal to the parabola y square is equal to 8x. Both are same question, which makes an angle of 45 degree with a positive direction of x-axis. This is regarding tangent. This is regarding normal. When it comes in a particular question, there is a confusion. What the confusion? Let me do the question first. For first part, actually y square is equal to 8x implies what? A is equal to 2 because 4a is equal to 8. And what is slope? Means slope of tangent here. M stands for slope of tangent here. This is what? This is actually your tan 45 means 1. So equation of tangent is equation of tangent is what? Equation of tangent is, y is equal to mx plus ay. I am repeating the formula. This implies what? Y is equal to x plus 2. I think you are agree with this. Y is equal to m is 1 and a is to mx plus 2. And what is point of contact?
what is point of contact here? We know in case of tangent, point of contact is a by m square 2a by m. So when we put this, a is equal to 2 and what? B is m is equal to 1. This is 2 and this is 2 into 2 4. So this is 2 into 4. This is the first question. Now come to the second question. Again, a is equal to 2, no problem. Here slope means slope of normal. Actually I am using this m and m here, but these stands for two different things. यही आपको बताना है. ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये दोनों अलग अलग है. एक ही क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टेंजेंट 45 बनाते, एक नॉर्मल 45 बनाता है, तो m1 m2 मानेंगे, m2 mn मानेंगे. ठीक है. दिस इज अगेन tan 45. आगे और भी हम क्लियर करने जा रहे हैं. नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है? नॉर्मल आपका होता है y is equal to mx minus 2am minus am cube. What I want to clarify, these are two different m. पैरेलल आएगा, अभी हम फिगर में दिखाएंगे. ये नॉर्मल का है और ये टेंजेंट का है. दोनों अलग अलग सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं. एक सवाल में होगा तो थोड़ा ध्यान रखेंगे. ये क्या इंप्लाइज करेगा? y is equal to m का वैल्यू आपका 1 है, तो ये हो गया x. फिर यहाँ पे 2 वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 4, और यहाँ पे 2 डालेंगे तो क्या 6. सीधा लिख दें. ये आपका वैल्यू दे देगा 4 और ये आपका वैल्यू क्या दे देगा? 2, क्योंकि a का मान 1 है, -6. दिस इज द नॉर्मल. लेट मी रेज द फर्स्ट पार्ट. आई होप यू हैव written the question. So what is foot of normal? What is foot of normal? This is actually a by m square minus 2a by m. This is a by m square minus 2a by m. So what is foot of normal? You can see this is basically a is what? 2 and this is what? This is -4. This is 2 and this is -4. This is 2 4 and this is what? 2 and -4. What is the main point? मेन पॉइंट क्या है? अब इसको फिगर से आप समझिए. फिगर से आप समझिए ये मेन पॉइंट क्या है. ठीक है. वो जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ, बातें तो बड़ी छोटी हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, पर कभी कभी माइंड ओवरलैप होता है. मैंने अच्छे स्टूडेंट्स को देखा इस पे कंफ्यूज होते हुए. सो ये पैराबोला है. पहले देखिए तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? 2 4. ये बता रहा है जो भी आपका 2 4 लगभग यहाँ पे भी होगा. यहां पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया. ठीक है. 2 4 में आपने क्या ड्रॉ किया? एक टेंजेंट ड्रॉ किया. ठीक है. ये आपका 45 डिग्री बना रहा है. अब आइए 2 -4. यहां ठीक नहीं, 45 में से ठीक नीचे आ गया है. 2 -4. यहां पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया. तो नॉर्मल हम कैसे ड्रॉ करते हैं? हम पहले हल्का सा टेंजेंट दिखा देते हैं और उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं. ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया 2 -4 से. एंड दिस इज द नॉर्मल. दिस इज द नॉर्मल. दिस इज 45 डिग्री. दिस इज पॉइंट 2 -4. तो मैं क्या डिस्टिंक्शन करना चाह रहा था? मैं डिस्टिंक्शन आपको ये कर देना चाह रहा था, ये दोनों स्लोप तो एक है, लेकिन दोनों तो पैरेलल लाइन का स्लोप है. नॉर्मली लोग सोचने क्या लगते हैं ना, अच्छा एक ही पॉइंट से टेंजेंट और नॉर्मल होगा. ऐसा तो असंभव है, हो ही नहीं सकता है. असंभव, इट्स इम्पॉसिबल. अब बात समझ में आई? तो अगर एक ही क्वेश्चन में मेंशन कि पैराबोला पे एक टेंजेंट बना रहा है 45 डिग्री और एक नॉर्मल बना रहा है 45 डिग्री, या कोई भी एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, मींस दे आर टू डिफरेंट पॉइंट्स. हम कैसे पकड़ेंगे? सबसे बढ़िया तरीका होता है गो थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू जाएंगे तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी और ये चीज आपका क्लियर होगा. आई थिंक आई हैव डन इट. लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू द parabola y square is equal to kx. To the parabola y square is equal to kx. Find the condition so that, लिखिएगा, अच्छा लगता है, so that a straight line px plus qx y plus r is a normal to the parabola. Which parabola? Parabola in y square is equal to kx.
नाउ लेट्स सी, क्या मैं बताने जा रहा हूं, कंडीशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, दिस रिजल्ट line y is equal to mx plus c will be normal to y square is equal to 4ax if c is equal to minus 2am cube, and this is the condition for normal. You can write here, this is condition for normal in a standard case. तो नॉर्मल में आपको ध्यान क्या रखना है, लाइन हमारा इस फॉर्म में है, लाइन हमारा किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है. सो गिवन लाइन px plus qy plus r is equal to 0, we can write this as qy is equal to minus px minus r, or we can write y is equal to minus p by qx minus r by q. What is your m? M is minus p by q. What is your c? Minus r by q. Also y square is equal to kx implies 4a is equal to k, means a is what? A is k by 4. A is k by 4. So what is the condition? Let me raise the question now. Required condition is this is question number 18. I have raised. Next will be 19. What is required condition? Required condition is c is equal to minus 2am minus am cube. So what is c? C is your minus r by cube minus 2. What is a? K by 4. What is m? Minus p by q minus again what is a? K by 4. This is minus p by q. We to simplify this. I am not doing the simplification. Simplify it. This is the condition. Simplify. And if you are interested in finding foot of normal, again use this formula am square minus 2am. This is foot of normal. Here you know a, here you know m. Put this point, you will do yourself. This is k by 4. You will do yourself. Put a and this you will get miss what? This is k by 4 into minus p by q whole square minus 2 into k by 4 into minus p by q. Simplify this. So it's a question. Let me do one more question on this. Let me do one more. I hope pause and write. Let me do one more question on this. Chord of this normal. Actually, I will cover here two questions. You can see the question. First part is based on this. What is the condition of normal? What is the condition of normal? C is equal to minus 2am minus am cube. What is the line? The line is y is equal to root 2x. I am writing in this fashion 4a root 2. You can see what is m? 2. And what is root 2? M is root 2. And what is c? Minus p root 2. Actually what we do? We will find this. Actually what we do now? We will find this. Putting m is equal to root 2. If this matches with this, means it is a normal, and doesn't match, it means it is not a normal. हम क्या करेंगे? ये normal का condition होता है, इसको हम इस वाले को उठा लिए. ये तो अगर इस क्वेश्चन में यही है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करेंगे. minus 2a root 2 and minus a. root 2 का क्यूब क्या होगा? root 2 का स्क्वायर 2 और फिर root 2 root 2. This is what? Minus 4a root 2 and this equals to c. दोनों संभावना हो सकती थी. प्लस और माइनस में कुछ नहीं. ठीक है किसके बराबर है? सिक तो है. ये c के बराबर है. दोनों संभावना हो सकती थी.
हो सकता है इसमें सी ऐसा दे जो इससे मैच नहीं करे, बट ये सी से मैच कर गया। इसका क्या मतलब है, सपोज कीजिए हम क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस दे देते तो यहाँ पर प्लस आ जाता, फिर वो इससे मैच नहीं करता, वो सी के बराबर नहीं होता, तो ये कहते नॉर्मल नहीं है। हेंस गिवन लाइन इज ए नॉर्मल, हेंस गिवन लाइन इज ए नॉर्मल। ये तो आपका नॉर्मल हो गया। अगर आप फुट ऑफ नॉर्मल निकालना चाहते हैं तो ये आपका होता है am स्क्वायर माइनस 2am, तो m का वैल्यू चूंकि √2 है तो ये आपका हो गया 2a और माइनस 2√2a। देयर इज वन मोर पार्ट, एक्चुअली मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ पिछले क्लास वाले को, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा तो बैक करके लिख लेंगे, ठीक है। वो एक्चुअली वर्ड है, रिपीट में कर रहा हूँ। जैसे अगर ये नॉर्मल है, जैसे अगर ये किसी पॉइंट पे नॉर्मल है तो ये लेंथ कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, मान लीजिए P है, Q है, ठीक है, कितना इंटरसेप्ट कर रहा है। तो आपको पता होगा लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ पूरे, ये तो पूरा नॉर्मल हो गया, लेकिन जहां जहां तक ये कट करेगा वो आपका क्या कॉर्ड। तो ये मैं बहुत बार ऐसे फिगर बनाकर कॉर्ड बोल देता हूं, एक्चुअली ये सेकंड है, पर कॉर्ड मतलब आप समझ लेंगे ये PQ है। तो कॉर्ड आपका क्या हो गया, नॉर्मल, PQ आपका क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड, पिछले क्लास का लास्ट थ्योरी याद कीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। लेंथ ऑफ कॉर्ड x2 माइनस x1 मॉड √1 प्लस m स्क्वायर। m यहां से हमको पता है √2, तो √2a स्क्वायर इज 2 प्लस 1 3 मींस व्हाट, x2 माइनस x1 √3 into √3, वेयर x1 x2 क्या है, हमको थोड़ा डेटा भी चाहिए। लेट मी इरेज दिस वन, वेयर x1 x2 आर रूट्स ऑफ √2x माइनस 4a √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बात समझ में आई? थोड़ा सा मैं होमवर्क करता हूं। हमने पिछले दिन बताया था ये है और ये लाइन का इक्वेशन है √2x माइनस 4a √2। इस दोनों में से आपको y को एलिमिनेट करना था। x1 x2 इसका रूप होता था, लाइन और पैराबोला के साथ आपको एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है, आपको y को एलिमिनेट करना है। तो ये वाला हमने यहां पे डाला y स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज 2x स्क्वायर, 4 चौका 16 गुना 32 32a स्क्वायर, और साथ में कितना हो गया 4 गुना 8 गुना 16 माइनस 16ax। सही किया है, सही किया होगा, इज इक्वल टू 4x। वन साइडेड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 20ax प्लस 32a स्क्वायर 0। इसको थोड़ा हम फैक्टराइज कर लें, लगता है फैक्टराइज हो जाएगा। ये नहीं होगा तो पिछले भी हमने आपको बताया था 10ax प्लस 16a स्क्वायर, हाँ ये फैक्टराइज हो रहा है। ये अपने x माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 8a, सही है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2a और 8a, यही आपका x1 x2 है। Therefore x1 माइनस x2 का मॉड आपका कितना हो गया, x1 माइनस x2 का आपका मॉड हो गया 2a माइनस 8a 6a। तो यहां से चले जाइए, कहां देखा था हमने, लेंथ ऑफ कॉर्ड पे लिखा था ना, यहां पर हमने लिखा था, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। फ्रॉम 1, ठीक है, हम यहां से लिख दे रहे हैं फ्रॉम 1 हमको दिखना चाहिए। लेंथ ऑफ कॉर्ड इज व्हाट, फ्रॉम 1 लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 6a √3। That's all about most important point of normal। नॉर्मल का लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो गया। अब मैं कुछ और पॉइंट्स आपको लिखवा दे रहा हूँ, वो पॉइंट कभी कभी काम आ सकता है, ठीक है। आपको इसमें से जो कुछ लिखना है वो आप लिख लीजिए। लेट मी रेज, यू मेक ए पॉज एंड राइट, मेक ए पॉज एंड राइट, एंड लेट मी राइट सम मोर रिजल्ट, लेट मी राइट सम मोर रिजल्ट। Actually they all are facts. Result number 4.
Result number 4. Actually, this is a fact. From a point at most three normals can be drawn to a parabola. ये किसी भी parabola के लिए सही होगा, एनी टाइम. बहुत ये नहीं आता, ये इसलिए कि क्यूबिक इक्वेशन था, बट मेन जो आपका रिजल्ट है जिसमें क्वेश्चन बनेगा, you can say this as result 5. चलिए हमने एक अलग रिजल्ट लिख दिया, या 4 का 1 और 4 का 2 ही कर दीजिए, आप ज्यादा अच्छा रहेगा. 4 1 and 4 2. If three distinct normals can be drawn from a point to the parabola y square is equal to 4x, then ये हमने आपको बता दिया था पहला, sum of slopes of normal zero, that is m1 plus m2 plus m3 0. रीजन के साथ बताया था, क्यूबिक इक्वेशन में m स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, a और b कर दिया. एंड पॉइंट नंबर बी, ordinates of फुट ऑफ फिट कर लीजिएगा. जब ऑर्डिनेट्स आ गए तो फिट ऑफ परपेंडिकुलर्स, या बी को ऐसे ऑर्डिनेट्स ऐसे लिखे, ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा होगा. लेट मी राइट अगेन, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर इज आल्सो 0. एक्चुअली ये कुछ खास है नहीं, जैसे अभी हमने एक फिगर लिया था, उस आप फिगर को समझ लीजिए, समझना तो चाहिए, प्रॉपर्टी कहीं कहीं लिखा होता है. जैसे अभी हमने ऐसे 3 नॉर्मल ले लिया था, ठीक है. मान लीजिए ये पॉइंट am स्क्वायर माइनस 2am1 है, ये पॉइंट मान लीजिए am2 स्क्वायर माइनस 2am2 है, और ये पॉइंट am3 स्क्वायर माइनस 2am3 है. इस तीनों के जब आप ऐड करेंगे तो -2a कॉमन लेने पर क्या मिलेगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, और m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना है, 0 है. ऑर्डिनेट इसी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा. ऑर्डिनेट मींस y कोऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट मींस क्या y कोऑर्डिनेट. प्रॉपर्टीज का तब यूज होता है. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. रिजल्ट 4 कर लिया, रिजल्ट नंबर 5. ये आपका रिजल्ट है. फ्रॉम ए पॉइंट h के, फ्रॉम ए पॉइंट h इज 0. नहीं, ऐसे मत कर लीजिए, ऐसे कीजिए. इफ three distinct normals can be drawn from a point h0 to the parabola y square is equal to 4ax, then h must be greater than 2a. h must be greater than what? h must be greater than 2a. प्रूफ समझ लीजिए. This is a parabola. कहाँ गया एक और पे? This is a parabola. This is focus A0. This is 2A0. And इस पॉइंट से आपके कितने नॉर्मल ड्रॉ होंगे, तो 3 नॉर्मल. एक बात आप जरूर समझेंगे
एक्सिस इज ऑल्सो ए नॉर्मल। पैराबोला का एक्सिस उसका एक नॉर्मल होता है, ये आप देख लीजिए, ये टेंजेंटेड वर्टेक्स था तो ये नॉर्मल होता है, बट दो और होंगे वो हम कैसे देखेंगे। इसे प्रूफ है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y is equal to mx minus 2am minus amq at h 0 0 is equal to mh minus 2am minus amq। आप कॉमन m ले लीजिए, h minus 2a minus am स्क्वायर, यहां से क्या मिलेगा, m is equal to 0 और इसको 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, h minus 2a is equal to am स्क्वायर। जानबूझकर ऐसा लिखा है h minus 2a am स्क्वायर। m 0 तो आपको इसको सजेस्ट कर दिया एक नॉर्मल, दिस इज m is equal to 0 और m स्क्वायर h minus 2a by a। अब m स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। स्टैंडर्ड केस में रिजल्ट प्रूफ करें, ये पॉजिटिव है, m स्क्वायर भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो h माइनस 2a होगा, ये a पॉजिटिव है तो आपका h माइनस 2a किससे बड़ा होगा, 0 से, h किससे बड़ा होगा, 2a से। इसमें एक बहुत बात जो इंपॉर्टेंट है वो आप अपने ढंग से लिख सकते हैं। किसी भी पैराबोला के लिए अगर उसके एक्सिस से हमको 3 नॉर्मल ड्रॉ करना है, उसके एक्सिस से अगर हमको 3 नॉर्मल ड्रॉ करना है तो एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो हमारा 2a डिस्टेंस के बाद होगा। इससे फोकस का जो डिस्टेंस है या सेमी लैटिस रेक्टम डिस्टेंस के बाद होगा। एक नॉर्मल ऐसे हो गया, एक नॉर्मल आपका ऐसे हो गया, एक नॉर्मल ऐसे हो गया। इसको हम किसी किसी क्वेश्चन में यूज करेंगे, अगर पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं भी होगा तो भी हम यूज करेंगे एक्सिस पे कि 2a डिस्टेंस के बाद है तो 3 नॉर्मल को हम यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू रिजल्ट नंबर 6। 2 रिजल्ट और है, बस मैं रिजल्ट बता रहा हूं, कहीं कहीं आगे यूज करूंगा। ये वाला रिजल्ट बढ़िया है, रिजल्ट नंबर 6। चलिए हालांकि इसको देखिए, ये रिजल्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव में बहुत यूज है। इफ नॉर्मल एट ए पॉइंट AT1 square 281 to the parabola y square is equal to 4x crosses या cuts parabola again at crosses parabola again at, you can say AT2 square to AT2, then T2 is equal to minus 2 minus 2 by T1। इजी प्रूफ है, मैं आपको दिखा देता हूं, इजी प्रूफ है। रिजल्ट देखिए, मैं रेज कर दूं तब तक। चलो आपका क्या है, जैसे ये आपका क्या है, देखिए प्रूफ देखिए। दिस इज ए पॉइंट, नॉर्मल है P पे, AT1 स्क्वायर टू AT1, और ये नॉर्मल पैराबोला को अगेन कहां पे कट कर रहा है, AT स्क्वायर टू AT1। बात समझ में आई? इफ नॉर्मल एट ए पॉइंट AT1 स्क्वायर टू AT1 टू द पैराबोला, ये नॉर्मल है, क्रॉसेस द पैराबोला अगेन। अब यहाँ पे नॉर्मल होनी है उससे मतलब नहीं है, पैराबोला को फिर से किस पे क्रॉस करता है, AT2 स्क्वायर टू AT2 पे, तो ये रिलेशन इसमें T1 और T2 पे। और बहुत सिंपल रिलेशन है, ये बहुत सिंपल रिलेशन है। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बहुत सिंपल रिलेशन है। फिर इसको मैं जरा इरेज कर दूं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट PT1 इज, ये लिखने का तरीका है, इस पूरे पॉइंट को शॉर्ट में लिखने का तरीका है। रिजल्ट नंबर 2, y is equal to minus T1x plus 2AT1 plus AT1 क्यूब। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका कितना होगा, माइनस T1। ऑल्सो बताइए तो आपका स्लोप ऑफ PQ कितना होगा,
2 पॉइंट फॉर्म से, या कॉर्ड अगर आपको सीधा याद है, हमने लिखा है तो कॉर्ड का 2/t1 + t2, तो आप और आसान हो जाएगा, दोनों को बराबर कर देना है। ये देखिए आएगा 2a_t2 - 2a_t1 अपॉन a_t2² - a_t1²। ठीक है, ऊपर से आप 2a कॉमन लिए, t2 - t1, नीचे से a कॉमन लेके फैक्टराइज किए, t2 - t1 × t2 + t1, ये कैंसिल हो गया, ये आता है ना 2/t2 + t1। और दोनों एक ही लाइन का नॉर्मल है, तो हम दोनों को इक्वेट कर दें। फिगर हम इरेज कर रहे हैं, देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर -t1 = 2t2 + t1, इसे दाएं बाएं कर लेना है। ये आपका क्या हो गया, t2 + t1 -2/t1, ये इधर चला गया, तो यहां से आपका t2 कितना हो गया, -t1 - 2/t1। But come to your final result. So this is the final result. The result is point of intersection of normals at the point, parametric point, at the parametric point T1 and T2 to the parabola y² = 4ax, 2a plus a t1 square plus t2 square plus t1 t2 and minus a t1 t2 t1 plus t2। याद रखना डिफिकल्ट है आपके लिए, नहीं याद होगा, बट इस पे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। एक्चुअली ये कहा क्या जा रहा है, और फिगर से इस बात को पहले समझिए, एक्चुअली यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया P_T1 पे, और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया Q_T2 पे। ये जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या है, वो कोऑर्डिनेट इतना लंबा चौड़ा होता है। एंड आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इसको याद रखिए, इसलिए याद रखने का हम सजेशंस देते हैं। यूज बहुत कम है, यूज बहुत ज्यादा होता है ना, तो बोलते याद कर दीजिए। एग्जाम में कभी आ जाए तो आप रिजल्ट नंबर 2 यूज कीजिएगा, 281 + 81³, और ये आपका हो गया P पे, T1 मींस व्हाट, 81 = 81, और ये -2a_t2 + a_t2। कभी आ जाए तो आप देख कर सवाल मत बनाइएगा, थोड़ा सा साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की आदत रखिएगा। जैसे हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 0, ये आपका क्या हो गया सब्ट्रैक्ट करने पर, ये आपका हो गया -t1 - t2, माइनस कॉमन लेकर x प्लस ये आपका क्या हो गया 2a_t1 - t2 और प्लस a t1³ - t2³। एक्चुअली यू विल सी नाउ, मुझे ये कैसे याद है, एक्चुअली मुझे ये पूरा स्टेप्स ही लगभग ध्यान में इसके याद रहता है। 2a_t1 - t2 plus a, when we factorize this is t1² plus t2² plus t1 t2। now you can see ये t1 t2 कॉमन लेने सब में कैंसिल हो जाएगा, you get this coordinate 2a plus this one, and now put this value in any of the equation, you say equation 1, यहाँ पे x का मान रख दीजिए, then you will get what, you will get value of y। so this is the result। this is all about normal to the parabola। I will take one more class in parabola, and there is some property of shortest distance and some questions on locus। that class will be based on some properties like what is this shortest distance between parabola and a line, or what is the shortest distance between parabola and a circle, and some questions for locus। for that we meet in next class। okay, thank you।